Hi students, and today in the continuation of the videos of current electricity, today we will deal the two topics. Number one is drift velocity, and the other one is the relation of drift velocity with electric current. तो चलें सबसे पहले हम देखें कि जो कोई भी कंडक्टर है उसमें एक्चुअली क्या क्या बेसिक्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए क्या क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। इट इज कनेक्टेड विथ ए सेल। ओके, so this is your conductor and it is connected with a cell. तो यहाँ पे एक दो चीज आप ध्यान दें कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, करंट कैसे फ्लो होता है और उसके रीजन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से कि द करंट कैरियर ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर इज ऑफ ए कंडक्टर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so free electrons, not all electrons, so free electrons are responsible for carrying current. Now, these free electrons are randomly moving without giving any connection with the cell. मान लो कि आप सेल से इसको नहीं भी कनेक्ट करते हो तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के दे आर मूविंग फास्ट, एंड आई एम टेलिंग यू the speed of those free electrons is in the range of 10 to the power 5 meter per second, and this speed comes by taking energy from where, from surrounding। मतलब इतने स्पीड है, और ये जो स्पीड इसको मिल रहा है कंडक्टर को, आपने कोई सेल से नहीं कनेक्ट किया। नॉर्मली हम बता रहे किसी भी कनेक्टिंग वायर में तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली मूविंग by getting energy from its surrounding. Energy predominantly in the form of heat energy. So by getting heat energy from surrounding, the electrons are always in motion. Since their direction is randomly oriented, so the net displacement of the charged particle becomes zero. तो आपने सिर्फ इसमें एक लाइन नोट करना है कि जो रैंडम मोशन के कारण इसके जो वेलोसिटी है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वो जीरो हो जाता है। तो यू राइट ड्यू टू रैंडम मोशन, the velocity of electrons, the velocity of free electrons, the average velocity, the average velocity of free electrons is zero. तो एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? U average is equal to U1 plus U2 plus go to n times and divided by n. So this becomes zero since their direction is random. तो इतने स्पीड होने के बावजूद भी बिना कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ से जुड़े हुए the free electrons are moving in random direction, and since their average velocity is zero, so it will not constitute any electric current. मोशन तो है लेकिन रैंडम है, इसलिए आपको करंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा क्योंकि इसके एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है ड्यू टू मल्टीपल डायरेक्शन। सो दिस ड्यू टू रैंडम मोशन, due to random motion, no current is
constituted, कोई भी करंट नहीं बनता, ठीक है, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसके जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है ड्यू टू द energy getting from its surrounding, although there is velocity, but the average velocity is zero, so nothing happens in terms of electric current. Now when you will connect the same conductor with a cell, what will happen that you try to see. अब किसी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट किए तो होता क्या, तो पहला लाइन आप लिखें कि इट स्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट establishes an electric field in the conductor. ये लाइन आप पहला लिखेंगे कि सेल को जब किसी कंडक्टर के साथ हम कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, तो सेल विल एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर. और आपको पता है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, what happens? The charge particle experiences a force. तो इसको हम दोबारा फिर कहते हैं, पहले भी बताए थे, if a charge particle is kept in an electric field, a force acts on it. If a charge particle is kept in an electric field, a force acts on it. What is the magnitude of that force? The force is equal to charge times electric field, yani charge into electric field, Q into E. Okay. So if you connect a cell to a conductor, it creates an electric field, and the free electron lying in the conductor will now experience a force whose value is charge into electric field. Now comes to about the direction also. So what is the direction? The direction of this force, you can write here. So direction, since the electron is negative charge, so direction of this force is opposite to the direction of electric field. Since electron is a negative charge, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है. तो वो लाइन आप नोट करें, since the electron is negative charge, is of negative charge, so the direction of force is opposite to the direction of electric field. Okay, so what you have seen that. तो स्टेप क्या हुआ, when the conductor is not connected with the cell, the electrons are in motion by getting heat from its surrounding. The motion is not less, it is about 10 to the power 5 meter per second. In that range, electron is moving, but those all motions goes in vain, goes useless because their direction is random. So net average velocity due to random motion of free electron is zero. So even though the electron is in motion, but it will not create an electric current. So it's due to their multiple directions, random directions. Okay, so when you connect the conductor with a cell, it creates one electric field.
the free electron of the conductor will experience a force, and the direction of that force is opposite to the direction of electric field. So these are the things that you have to understand carefully and clearly. Now you come here. First you see what is the direction of electric field. So can you tell me two ends of the potential? This end is high potential because this is connected to the positive terminal. This is this end because the current goes from high potential to low potential. So this is your high potential, and the other end is what? This point is low potential. Okay, and as you know, the current goes from high potential to low potential. The direction of electric field is always towards the decrease of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो किधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ तो अगर हम इसको हम नाम दे दें अल्फाबेट से ए बी इज योर कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके तो डायरेक्शन आपको पता है मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं देखें तो मैग्नीट्यूड आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन था कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय दिस सेल इज E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V divided by the length of the conductor. So L is here, length of the conductor, and V is what? Potential difference divided by length of the conductor. So this much electric field is created. तो अगर आपको ये सब बात मालूम हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो सपोज करो ये 10 वोल्ट की बैटरी है ये 2 मीटर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 10 by 2 that is 5 volt per meter. So this is the value of electric field in the conductor. Okay. Now you come here. ये तो एक पार्ट हुआ तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ लिया अब जो हमने बोला था पहले कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है So what is the direction of electric field? From A to B towards this. So what is the direction of force acts on the electron? Opposite to the direction of electric field. That means towards B to E. Correct? Okay. तो ये ध्यान में आप हमेशा रखिए आगे फिर चलते हैं तो लेट पहला लाइन आप लिखें इसमें कि अभी इसका हमारा काम चलेगा लेट you see here let E is the charge of electron okay and M is its mass and M is its mass now you tell me और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर में सेल के कारण तो आपसे अगर पूछ दे कि कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो व्हाट इज द चार्ज जस्ट यू हैव कंसीडर्ड दिस E into E okay no problem charge into electric field. If you denote this in vector form, so force vector और electric field vector, तो आपको पता है ना कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट है इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस साइन देते हैं दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस फोर्स विल एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन और आप सभी को शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो
कि जब कोई भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, acceleration of electron A is equal to, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास, तो F डिवाइडेड बाय m। ओके, तो F क्या है आपको नहीं, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स के जगह हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू वेक्टर ई divided by m. So this is equation 1 you consider. So this is acceleration of free electron when you connect a conductor with a cell. तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हुआ जब किसी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट करते हैं। आई होप दैट till now you might have understood these all basics. अब चले, अब देखो कि एक हम लोग इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का, कि जो v होता है वो बराबर होता है u प्लस ए टी। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फोर्स काम करे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक सर्टेन टाइम टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वह v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मींस बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हाट वाज द वेलोसिटी। और ये जो टर्म है ए टी, इट इज ऑल्सो ए वेलोसिटी बट इट इज अ एडिशनल वेलोसिटी। तो एडिशनल वेलोसिटी कहां से आया? फोर्स लगने के बाद। कितना देर तक फोर्स लगा है? मान लो टी टाइम तक फोर्स लगा है, तो इतने वेलोसिटी u में ऐड हो जाएगा। इसको इक्वेशन को इस तरह से आप समझें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? तो v जो है इट इज अ फाइनल वेलोसिटी दैट यू नो, एंड हियर यू हैव टू इंश्योर दैट योर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो आफ्टर टाइम t द एडिशनल ए टी जो है वह एडिशनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बोल सकते हो, डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। तो ए टी जो है इट इज एन एडिशनल वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स। और u क्या है? u इज ऑल्सो ए वेलोसिटी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब आपने फोर्स लगाया था उससे पहले। इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगने से पहले का एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो काम आपका आसान हो गया। तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा a इंटू टी। ओके, अब हम यही एडिशनल वेलोसिटी जो है वह इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको आप समझे। अगर आपसे पूछे कि कंडक्टर में कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेजिस्टेंस, तो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स, तो देखो कंडक्टर में आप सोचो कि है क्या क्या, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो एटॉमिक कोर है वो है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है आप पॉजिटिव आयन भी उसको बोल सकते हो। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको फ्री स्पेस नहीं मिलता है, तो क्या होता है ना, वो कोलिजन करता है, इट इज कोलाइडिंग। तो क्या होगा आप देखोगे एक टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, यहाँ से कोलाइड हुआ यहाँ गया, फिर यहाँ से कोलाइड हुआ यहाँ गया, फिर यहाँ से कोलाइड हुआ यहाँ गया, लाइक दिस कोलाइड होके ये पहला कोलिजन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ये कोलिजन होता है आपस में। ठीक है, तो दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इस रिलैक्सेशन टाइम में
इस रिलैक्सेशन टाइम में ही आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह एक्सेलरेट होगा। ज्यों ही टक्कर हुआ फिर इसकी सारी एक्सेलरेशन खत्म, फिर से वो स्टार्ट करेगा और फिर एक्सेलरेट होगा। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन खत्म, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, टकराने के बाद उसकी स्पीड भी खत्म हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है एक्चुअली इट्स अ ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एंड इन दिस रिलैक्सेशन टाइम द फ्री इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। इसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। जो ही कोलिजन हुआ इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगा वहां पर जीरो, फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर दूसरा कोलिजन के लिए, फिर तीसरा कोलिजन के लिए। तो लाइक दैट इट इज हैपनिंग। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यू राइट ऑन दिस। ओके, सो कम, तो हमारे टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, XATI1, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं टॉ से, टॉ। तो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आप लिखो कि जो you write down it is the duration between two successive collision, duration between two successive collision, two successive collision. Okay, during this time the free electron is being accelerated. इतने ही समय आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। यू राइट ऑन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, during relaxation time the free electron is accelerated. उसी पीरियड में वो एक्सेलरेट होगा। फिर टक्कर यानी दो टक्कर के बीच का जो गैप है उसी में एक्सेलरेट होता है, फिर वो खत्म हो जाता है उसकी एक्सेलरेशन। टकराने के बाद फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर टकराएगा अगला टक्कर, फिर खत्म हो गया, लाइक दैट। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम during the relaxation time the free electron is accelerated during relaxation time the free electron is accelerated, सिर्फ उसी दौरान वो एक्सेलरेट होगा। अब आप एक और चीज यहाँ पे ये है कि हर एक दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो हर एक कोलिजन में ये टाइम अलग अलग मिलेगा। तो मान लो कि आप n कोलिजन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप देखोगे कि n कोलिजन में रिलैक्सेशन टाइम अलग 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 अलग, ठीक है। तो हम एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। किसी एक कोलिजन का नहीं लेंगे, हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, टॉ एवरेज। ये बराबर क्या हो जाएगा, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस टॉ n डिवाइडेड बाय n। तो आपने एक एवरेज वैल्यू निकाला, तो हम यही वैल्यू से आपको आगे बढ़ेंगे। हम अगर रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं तो आप समझ लेना इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हो सकता है किसी का जो टॉ 1 होगा वो एवरेज से ज्यादा हो, किसी का जो टॉ 2 होगा वो एवरेज से कम हो, दैट मे हैपन, बट वी विल टेक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोगों ने मतलब सिर्फ यहाँ पे समझ में आया कि दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एंड दूसरा हमने आपको बताया कि रिलैक्सेशन टाइम के दौरान ही फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, फिर जो टक्कर खत्म होगा तो वो उसकी सब खत्म हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्रॉप टू जीरो, देन अगेन इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। ओके, सो दिस इज हैपनिंग। अब आप आगे बढ़ें कि इस सब के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यू राइट डाउन, तो यू राइट डाउन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
due to electric field, the free electrons, the free electrons are drifted. The free electrons are drifted. The velocity with which it drifts is called drift velocity. ओके, तो फोर्स लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जगह से थोड़ा ड्रिफ्ट होता है। ये नहीं समझना कि इलेक्ट्रॉन भाग के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गया, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। ये अपनी जगह से हल्का सा ड्रिफ्ट होता है, और ये काम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है। तो यही तो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये भी ड्रिफ्ट हो गया, 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 तो लाइक दैट एनर्जी इज ट्रांसफरिंग। और ये बहुत फास्ट होता है, जितना स्लो हम बोले हैं ना उतना स्लो नहीं होता है, इट मूव्स वेरी फास्ट इन द ड्रिफ्टिंग एकदम विद इन नो टाइम। तो एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट, इसलिए बोलते हैं ना जो ही स्विच ऑन करते तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये ध्यान में रखें। अब चले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैथमेटिकल, इतनी बात समझ गए तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अब देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपली यू कैन राइट VD, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखे U एवरेज प्लस A इंटू टॉ एवरेज। एक्सेलरेशन तो कितना देर एक्सेलरेशन होता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है उतनी देर तक होता है। अब आपको पता है ना U एवरेज तो जीरो है इसके, तो फोर्स लगने से पहले इसकी जो नेट वेलोसिटी है, नेट इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, वो जीरो है। प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है E/m इंटू टॉ एवरेज। तो नॉर्मली टॉ एवरेज हम ना लिख करके टॉ ही लिख देते हैं, आप अपने बुक में देखें। ओके, सो VD इज E टाइम्स E/m इंटू टॉ। अब इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है, तो VD, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था ए से बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा B to A। तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान करके रखें। ये तो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन ऑफ I with VD, इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है वो आप देखो। तो सबसे पहला बात कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से A से B जाना चाहे तो क्या होगा, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम कोई भी कंडक्टर को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर A से B जाए तो एक काम करो, लेट द कंडक्टर हैज दो तीन चीज हम ध्यान में रखेंगे।
let the conductor has a area of cross section कुछ इसमें पैरामीटर आप मानिए L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्मॉल n, the n is number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume. अब इस n को हमेशा ध्यान में रखें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसका यूनिट जो आएगा वो पर मीटर क्यूब होगा। तो अब आप देखो यहां पर अगर A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और L लेंथ है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू एल। एक्चुअली हम पहले ए बी मान लिए थे कंडक्टर को, इट्स अ बेटर टू राइट पी क्यू, तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ए हमने 2 बार यूज करें, 2 बार नहीं करना है। इसे अब आप मान सकते हो दूसरे डायग्राम में कि दिस इज अ पी क्यू कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। अब आओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, बताओ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा A इंटू एल, और यूनिट वॉल्यूम में ये स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस टेल मी, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल M is equal to number of free electron per unit volume into volume of the conductor. So this is your total free electrons, N into A into L. Okay. अब आप देखें कि अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपके कंडक्टर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी क्या है ये बताओ। तो पहला आप लिखो टाइम टेकन बाय ए कंडक्टर इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, ये पहले निकालो, टाइम टेकन बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, हाउ मच, तो टाइम का फॉर्मूला आप निकालते थे डिस्टेंस बाय स्पीड, या फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू हैव बीन लर्निंग speed is equal to distance by time, time is equal to distance by speed. So what is the distance? The distance is L. What is the speed? Speed is Vd. So L by Vd is the time taken. Okay. अब आए तो टाइम मिल गया आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालने हैं, तो देखो मेरा लास्ट स्टेप, तो आप बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट, अब हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट निकालें, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाय टाइम। तो अब आप हमको ये बताओ कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चल गया NaL, तो टोटल फ्री चार्ज कैरियर कितने हुए, तो यानी सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E हो तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा NaLe, तो वही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NaLe, this is the total charge of all free electrons divided by time. Just now you got time,
time is equal to L by Vd. So L is being cancelled. So what is the relation? The relation I is equal to, देखो आप एक जगह इकट्ठा कर लो, एन ए ई वी डी. तो इलेक्ट्रिक करंट I is related with the drift velocity I is equal to NAEVD. Okay, ठीक है, I is equal to NAEVD. अब आओ एक और चीज आप समझ लें आज के लिए कि हमारे दो एक्सप्रेशन हमने आपको बताया कि VD वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस E by m, this E vector, and the drift velocity is related with the electric current. So today's conclusion is simple, that the electric current is due to drift velocity of free electron. So how it is related? I is equal to NAEVD. It's a simple way to come. There is another method also. तो मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कोई भी मेथड जो समझ लो इट्स ओके. तो दो रिलेशन आया. अब क्या हम इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं? तो आप ध्यान से देखें कि I बराबर क्या हो जाएगा. I इज इक्वल टू NAEVD. VD को आप बदल दो, वेक्टर फॉर्म कुछ देर के लिए आप भूल जाओ. VD इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू NAEVD के जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Anybody has idea? VD के जगह हम लिखेंगे E into E by M. ओके, ठीक, ये हम लिख सकते हैं इसको E into E by M. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते हैं? अभी जस्ट आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस divided by length. It's a potential gradient. Okay, so E is equal to V upon L. तो I का फॉर्मूला आप देखो, I बराबर कितना आया? NA स्क्वायर बाय M इंटू V बाय L. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो आप हमको ये बताएं कि अगर इसके सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाए, जैसे एन क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E is charge of electron, M is mass of electron, L is length of the conductor. If you keep it constant, what will happen? तो अब आप देखो, सॉरी एक चीज हम भूल रहे हैं, VD इज इक्वल टू E बाय M. ये तो एक्सेलरेशन हुआ ना, यहाँ पे टॉ भी होगा. VD इज इक्वल टू, फॉर्मूला थोड़ा हमारा सही नहीं था, E बाय M इंटू टॉ, ये फॉर्मूला था सही में. तो यहाँ भी टॉ तो छूट रहा है, कहाँ VD रिप्लेस किए थे? E बाय M इंटू टॉ, करेक्ट. यहाँ भी आपको टॉ छूट रहा है, ऐसे लिखते हैं टॉ यू नेवर, रिलैक्सेशन का, इट इज स्टिल देयर. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, अगर ये सब वैल्यू NAE स्क्वायर टॉ ML ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाए तो क्या? If all parameters are constant, then this is the conclusion. I is directly proportional to V. And this is what? It is Ohm's law. So Ohm's law हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसे भी आपसे पूछेगा कि प्रूव ओम्स लॉ इन फिजिकल पैरामीटर्स, तो फिर यही सब फिजिकल पैरामीटर्स NAE टॉ ML सारे, अगर सारे कांस्टेंट कर दें, टॉ भी कांस्टेंट कर दें,
तो फिर आपको ये होगा, करेक्ट। तो आप इससे एक और थोड़ा बढ़िया से फॉर्मूला इसका बनाओ। आई का फॉर्मूला है तो भी का फॉर्मूला बना लो इसी से। तो कैन समबडी विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर भी? तो भी का जो फॉर्मूला होगा वो जस्ट वी आर गिविंग v इज इक्वल टू ml by n a स्क्वायर, नहीं, ml by n a e स्क्वायर tau इंटू आई, ये फॉर्मूला ml n a e स्क्वायर tau, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी को हम अरेंज किया और कुछ नहीं किया, कोई नया चीज नहीं है, सेम चीज है। तो आपने ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? v इज इक्वल टू, रिकॉल इन ओम्स लॉ v इज इक्वल टू r टाइम्स i। अब दोनों एक ही है, दोनों अगर हमको ओम्स लॉ फिजिकल पैरामीटर्स में प्रूव करने के लिए बोले तो ऐसे ही प्रूव करेंगे। r की जगह क्या है? तो r की जगह गौर से देखो, i की जगह है तो r इज इक्वल टू, देख लो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का नया बन गया, r इज इक्वल टू ml बाय n, r की जगह जितना चीज है ना ये सभी r की जगह है, ml बाय n a e स्क्वायर tau, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ओके, अब एक और फॉर्मूला आप यहीं पे 1 मिनट में बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर पहले का याद करो, R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब यहीं पे रो एल बाई ए लिख लो, तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर टॉ। देख लो एल एल कैंसल, ए कैंसल, तो हमारा एक और फॉर्मूला बना, रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला बना ही, रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम बाय व्हाट इज लेफ्ट एन ई स्क्वायर टॉ, एम बाय एन ई स्क्वायर बाय टॉ। ये 4 फॉर्मूला मैं आपको बताया आज के लिए। आप थोड़ा 1-2 बार बैठ के प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है, एंड यू डू टाइम्स एंड अगेन। पहला फॉर्मूला वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टॉ, फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर हमने ओम्स लॉ प्रूफ कर लिया, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर फाइनली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ओके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक कॉमन फैक्टर है कि रेजिस्टेंस भी टॉ पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी टॉ पे डिपेंड करता है। ठीक, अब आप एक चीज हमको बताओ कि टॉ क्या है? टॉ जो है दिस इज द एक्चुअली ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 कोलिजन के बीच का टाइम है ये टॉ, और इसी दौरान जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होता है। ओके, तो अगर आप हीट करोगे से, अगर आप हीट कर दिए तो कोलिजन जो है वो इट बिकम्स फास्टर एंड फास्टर, the electron will collide with the electron itself, or sometimes electron will collide with the positive ion। इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की 2 ही संभावना है, या तो वो पॉजिटिव आयनिक कोर से टकराएगा या फिर खुद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू एक्चुअली कि जैसे जैसे आप हीट करोगे द रेट ऑफ कोलिजन इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। तो अगर वो फास्टर हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? आप 10 सेकंड के लिए पॉज करो और सोच लो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा?
The relaxation time actually था the duration between two successive collision. If collision takes faster, तो आपको एक conclusion मिलेगा ये कि if we increase the temperature, the collision becomes faster. इसको note भी कर लेना. And the relaxation time decreases. Relaxation time का value घट जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है. तो जल्दी जल्दी होने का मतलब है जो दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है वो बहुत छोटा हो रहा है, तभी तो जल्दी जल्दी हो. फास्ट का मतलब होता है रैपिडली, क्विकली. सो अगर रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? The resistance will also increase because on increase of temperature, relaxation time decrease, and this decrease of relaxation time will finally increase the resistance. तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, शायद वो फॉर्मूला आपको ध्यान भी होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का या रेजिस्टिविटी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घटेगा. तो दोनों का एक ही तरह से रिलेशन. तो थैंक यू वेरी मच. कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स एज वेल एज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, दोनों की ग्रुपिंग कल में बताएंगे. थैंक यू.